We are learning JavaScript. So let's continue our discussion on basic concepts of JavaScript. Okay, so up to this, you learn what actually JavaScript is. So JavaScript is a client-side scripting language which is used to develop dynamic web pages or dynamic websites. So up to this, you learn what actually JavaScript is and features of JavaScript, applications of JavaScript. Then we discuss where actually you can type the JavaScript code. So actually there are three different locations where you can write the JavaScript code while writing HTML program. Okay, so either you can write JavaScript code in body section of the HTML program, or you can write JavaScript code in the head section of the HTML program, or you can write external JavaScript code, external file you can create. Okay, so there are the three places actually where you can write JavaScript code in HTML program. Between body tag के अंदर आप JavaScript का code लिख सकते हैं. Second place is you can write JavaScript code in head tag, or you can create a external JavaScript file that you are supposed to save in .js extension. Okay, you are supposed to write JavaScript code or program in this .js file, and then HTML program you can link with this JavaScript file to perform the operation on the information on the HTML file. HTML file और JavaScript को link करना है. Then also you can then develop the dynamic web page. Okay, so with example, I show you where you are supposed to type the code. Okay, so if you are supposed to write JavaScript code in a body section, okay, so you can write under this script tag. Okay, in body tag of HTML program, you can write a tag called a script, and whole JavaScript program come between the script tag. Make sure that script you are supposed to write here. So each and every instruction you are supposed to write here according to some specific rules and regulation. Okay, instruction must end with semicolon. Each and every instruction of the JavaScript code end with semicolon. ठीक है, तो जैसे आपने C लैंग्वेज में प्रोग्राम आप लिखते हो उसी तरह से प्रोग्राम आप यहाँ पे लिख सकते हो स्क्रिप्ट टैग according to rules of JavaScript. Okay, most of the syntax of C language program and JavaScript programs are same. Okay, some changes, few changes are there. Okay, otherwise that if else, while loop, for loop, do while loop, what is the syntax of C language is there as it is we can use in JavaScript with the same concept. Make sure that each and every instruction of JavaScript code must end with semicolon in the script tag. Okay, so this is the first way where you can write the JavaScript code in between body tag. Okay, body tag में आपको script tag enclose करना है और script tag के अंदर आपको code लिखना होता है JavaScript का code. So depends. So this instruction may vary problem to problem. Okay, now what task we perform when I execute the HTML program? So body section में तो कुछ नहीं है, लेकिन script है. Script में alert box display होगा, and that alert box will display hello Java point when I execute this program. So as soon as I run, you will view such type of alert box. Okay, this box is called as alert box. Okay, and that alert box consists of a message hello Java. Alert function will display alert box along with some message you can display there. So what message you would like to display there, you can type it. Hello Java point, say hello Java point users. Okay, now that message will be displayed in the alert box. If I execute this, hello Java point users. Okay. So this is the ready-made program that I am going to show you directly on online through this website. You can also execute this program at home by typing this program in Notepad. As it is, you are supposed to type this program as it is. जैसे हम HTML का प्रोग्राम टाइप करें नॉर्मली, वैसे आपको टाइप करना है, और जैसे हम प्रोग्राम को सेव करते हैं .html वैसे ही आपको सेव करना है प्रोग्राम. ठीक है, आपको करके दिखा रहा हूँ. सपोज अभी मैं टाइप नहीं करने वाला प्रोग्राम, सिंपली ये कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से नोटपैड में आपको पेस्ट करना है. एक
नॉर्मल सा HTML का प्रोग्राम जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड किया, ठीक है। HTML प्रोग्राम begins with HTML end with /HTML, body /body, हेड सेक्शन यहाँ पे स्किप किया है, और बॉडी टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट का कोड आपको बॉडी टैग में लिखना है तो आपको वो कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होता है, स्क्रिप्ट टैग, ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग एंड एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग का एक एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट पब्लिक जावास्क्रिप्ट, this type attribute specify this code is for JavaScript program और JavaScript का कोड है ऐसे यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, मैंडेटरी नहीं होता है लेकिन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ब्रो। सर दूसरे बच्चे ट्राई कर रहे हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, so how you are supposed to execute this? ठीक है, so after typing your JavaScript program, after embedding your JavaScript code in the HTML program, save that program with .html extension as it is, ठीक है। जैसे आपने नॉर्मल HTML का प्रोग्राम करते हैं उसी तरह से, सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है first.html, name of the HTML program is first.html, okay। So when I execute this HTML or HTML program, what will happen? As soon as I'll execute the program, alert box will be displayed on the web browser, alert box along with the message। उस alert box में क्या डिस्प्ले होगा? मैसेज हेलो जावा पॉइंट यूजर्स, ठीक है। तो कैसे एग्जीक्यूट करना है? सिंपली जैसे हम HTML का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उसी तरह, जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया, देखो ये इसको बोलते हैं अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स इज डिस्प्लेड अलोंग विद द मैसेज हेलो जावा पॉइंट यूजर्स। सो एज सून एज यू रिफ्रेश दिस पेज, HTML प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूट। रिफ्रेश कर रहे हो मींस आप सेम वेब पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, सो सेम कोड एग्जीक्यूट होता है। So as soon as you refresh, again that alert box will get displayed hello Java point users, that message will be displayed again when you refresh the web page, the alert box will get displayed. So this appears on the web page due to the JavaScript. Okay, now we can call this web page as a dynamic web page, run time पे display हो रहा है, ठीक है। So HTML में possible नहीं ऐसे alert box display करना स्क्रीन के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, स्क्रिप्ट उसके लिए प्रोग्राम चाहिए। So this is an example of a dynamic web page now, ठीक है। और भी सारे बहुत कंसेप्ट है, हम तो यहाँ पे भी सीख रहे कि HTML का जावास्क्रिप्ट का कोड आपको कहाँ पे लिखना है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। So each and every time when you load this program, only one JavaScript instruction will get execute. Alert function will open this alert box, और अगर आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है उस अलर्ट बॉक्स पे तो आप वहाँ पे पास कर सकते हो कोड में, ठीक है। कोड में हमने टाइप किया कि क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, ठीक है। ठीक है। So as soon as this is your editor and this is the web page, so as soon as you run this program, message alert box is displayed hello Java project. So this is the first way of writing JavaScript code. कहाँ पे लिख सकते हो? बॉडी टैग के अंदर। Then next is you can write JavaScript code in head section. Head section में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। So HTML program is divided into two sections, head section and body section. So if you would like to write JavaScript code in body section, you can write. If you want to write head section, you can also write the head section, ठीक है। So हेड सेक्शन के अंदर अगर आपको कोड लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ हेड टैग, दिस इज क्लोज ऑफ हेड टैग, और उसमें हेडिंग सेक्शन में आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करके यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया है, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, फंक्शन कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में? फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम आना चाहिए, दिस फंक्शन कीवर्ड एज इट इज विदाउट स्पेलिंग function, then you can give any name to the function, ठीक है। then function body, opening and closing curly bracket, this is called as function body, and in function body you are supposed to write the logic of that particular function, the task performed by that function,
So when I call this function, I want to just display the dialog box hello Java point. So the alert box will be displayed even only if I call the function. The function, and you know that function कब execute होता है unless and until you call the function, function does not get executed. So इस प्रोग्राम में alert box कब डिस्प्ले होगा? जब function img को कॉल किया जाएगा तभी alert box डिस्प्ले होगा, तब तक alert box डिस्प्ले नहीं होगा. ठीक है, तो ये HTML का कोड है क्या? HTML का कोड है नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है. ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने हेड सेक्शन में लिखा है अंडर दिस स्क्रिप्ट टैग. Then HTML में मैंने क्या किया HTML प्रोग्राम में? So this is the entire HTML program saved with .html .html extension. ठीक है, बॉडी टैग में मैंने पहले क्या किया इस प्रोग्राम में क्या किया? पहले एक पैराग्राफ डिस्प्ले किया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, तो पैराग्राफ डिस्प्ले होगा. उसके बाद फॉर्म डिजाइन किया है, फॉर्म पे एक ही कंट्रोल पुट किया है, वो है बटन. इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन विल डिस्प्ले वन एक्शन बटन ऑन द फॉर्म. उसके ऊपर कैप्शन रहेगा क्लिक, बटन के ऊपर कैप्शन रहेगा क्लिक ड्यू टू दिस वैल्यू एट्रीब्यूट. And on click is equal to mhg. इसका मीनिंग क्या है? When you click on that action button, mhg function will get called. तो जावास्क्रिप्ट में आपने mhg फंक्शन लिखा है वो कॉल होगा. कब कॉल होगा? HTML के फॉर्म के ऊपर जो आपने एक्शन बटन डिस्प्ले किया है उसके ऊपर आपने क्लिक किया. तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, दिस इज कॉल्ड एज इवेंट. If that event occur, what should happen? If on click event occur, what should happen? Function should get called. Which function? mhg function. So each and every time when you call, when you press or when you click on that action button, function mhg will get called and accordingly then alert box will be displayed. On click, a type of this is attribute of input function, and this attribute is specify the event. So which event? On click event. When on click event is occur on that action button, function will get called mhg and accordingly then the task will be performed. ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, ये पूरा प्रोग्राम नोटपैड में टाइप करके .html से सेव करना है. जब आपने प्रोग्राम रन किया तो कुछ इस तरह से आपको वेब पेज के ऊपर दिखेगा. ठीक है, अभी प्रोग्राम में देखो क्या लिखा है. बॉडी सेक्शन में क्या है? पहले पैराग्राफ है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, तो वो मैसेज डिस्प्ले होगा. वेलकम टू जावास्क्रिप्ट के बाद फॉर्म डिजाइन किया है, फॉर्म में एक ही कंट्रोल है बटन. इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, सो दिस बटन विल बी डिस्प्ले. वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक, सो क्लिक यहाँ पे मैसेज आ रहा है. And on click is equal to mhg. इसका मीनिंग क्या है कि when I click on this click button, this mhg function will get called. तो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा. जावास्क्रिप्ट के कोड में हमने क्या लिखा है? फंक्शन के कोड में लिखा है एक इंस्ट्रक्शन फंक्शन अलर्ट. तो अलर्ट स्टेटमेंट क्या करेगा? अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले करेगा और उस अलर्ट बॉक्स में मैसेज रहेगा हेलो जावा पे. ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, as soon as I click on the button, हेलो जावा पे मैसेज आ रहा है. डायनामिक वेब पेज रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि क्या एक्शन परफॉर्म. So as and when I click on this button, action appropriate set of action is performed. So what action is performed? Displaying the dialog or this alert box along with the message Java hello Java. Okay. So now I can click any number of times I can click on this button. As and when I click on this button, that alert box get displayed due to this function. क्योंकि उसमें हमने एक ही फंक्शन लिखा है alert. और alert function का कॉल होगा when on click event occurs on this action button. जो बटन हमने डिस्प्ले किया है इस बटन के ऊपर जब ऑन क्लिक इवेंट ऑकर होगा तब फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होने के बाद वो टास्क उसका टास्क हो रहा है. ठीक है, so this is one way to write JavaScript code in here section. ठीक है, third is what you can do is you can write a JavaScript code in some other file. जैसे मैंने ये साइजोग्राफ की जो फंक्शन है JavaScript का कोड, JavaScript कोड में सिर्फ फंक्शन लिखा है. फंक्शन का नाम है mhg and this is the body of the function along with one instruction. ठीक है, सेपरेट फंक्शन लिखा है जावास्क्रिप्ट का कोड. कहां पे स्टोर किया है? सेपरेट फाइल. सपोज दिस कोड इज स्टोर्ड इन message.js. You are supposed to save this JavaScript code in some other file. You can give a name to that file. Any name you can give that to that file, but the extension must be .js compulsory. ठीक है, then you can link your new HTML program, any other HTML program you can link with that by using script tag in head section. Head section में आपको क्या करना है? स्क्रिप्ट टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू देना है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और सोर्स src एट्रीब्यूट के लिए उस प्रोग्राम का नाम स्पेसिफाई करना है message.js. जो प्रोग्राम आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम सेव किया है उस फाइल का नाम.
SRC एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करना है, SRC इक्वल टू message.js। इससे क्या हो जाएगा कि आपका ये जो प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, दिस प्रोग्राम विल गेट लिंक विद दैट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में क्या है, फंक्शन। ठीक है, एंड रिमेनिंग HTML प्रोग्राम एज इट इज। जब आप ये HTML प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो पहले मैसेज डिस्प्ले होगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और उस वेब पेज के ऊपर एक्शन बटन डिस्प्ले होगा। एक्शन बटन के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, MHG। कहां पर है, जावास्क्रिप्ट फाइल में। और जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने ऑलरेडी लिंक किया है, ये वाला HTML प्रोग्राम हमने जावास्क्रिप्ट फाइल के साथ ऑलरेडी लिंक किया है। ठीक है, तो वो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, अकॉर्डिंग अलर्ट बॉक्स विल गेट डिस्प्ले। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट। देखो आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं देगी, दो अलग अलग फाइल है। तो देखो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, पहले आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। ठीक है, सो नोटपैड में हम लिखेंगे नोटपैड। ठीक है, जावा, दिस इज द जावास्क्रिप्ट कोड। फंक्शन, उस फाइल में मैंने क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है। एंड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन स्टार्ट विद कीवर्ड फंक्शन। फंक्शन का नाम है MSG, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए नाम दिया है MSG। यू कैन गिव एनी नेम एक्चुअली। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू वुड लाइक टू चेंज द नेम, सपोज द नेम ऑफ द फंक्शन इज ABC। So when this function called ABC, what asks you to perform, alert box will get displayed। क्योंकि फंक्शन के अंदर मैंने एक ही इंस्ट्रक्शन लिखा है, अलर्ट हेलो जावा टी पॉइंट। और आपको अगर दूसरा मैसेज भी टाइप करना है तो हेलो जावा टी पॉइंट यूजर्स, एक ही इंस्ट्रक्शन है दूसरे में। सो दिस फाइल अभी सेपरेट फाइल, यहाँ पे HTML का प्रोग्राम लिखना है कि आपको नहीं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ एंड द नेम ऑफ द फाइल इज से msg.js। You can give any name to this file, but the extension must be .js। So मैंने क्या नाम दिया है, msg.js। ठीक है, now you can write any other HTML program। That HTML program you can link with that JavaScript file। ठीक है, तो उसका कोड मुझे टाइप नहीं करना है अभी, to save the time डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, प्रोग्राम ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, HTML हेड सेक्शन में आपको पहले आपका ये नया प्रोग्राम है, इसको सेव नहीं किया मैंने, सिर्फ टाइप किया लेकिन सेव नहीं किया। ठीक है, सेव करेंगे उसके पहले हमको क्या करना है, हमारा ये जो प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के साथ लिंक करना है। तो हमने वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का नाम क्या दिया था, MSG। ठीक है, तो हेड सेक्शन में आपको स्क्रिप्ट टाइप में लिखना है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, SRC इक्वल टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम msg.js। हेड सेक्शन कंप्लीट। बॉडी सेक्शन में पहले पैराग्राफ डिस्प्ले होगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। फॉर्म डिस्प्ले किया है, फॉर्म पे एक एक्शन बटन है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू से क्लिक मी, और व्हेन आई क्लिक ऑन दैट बटन क्लिक मी, MSG function will get called from which file, from this msg.js JavaScript file that will display the alert doors। let me save this program। program name is say you can give any name। सॉरी, हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का नाम यहाँ पे चेंज किया है ABC ना, क्या नाम दिया था, मैं तो भूल गया, मुझे चेक करना पड़ेगा पहले नाम क्या दिया है हमने। ये देखो ये प्रोग्राम है msg.js, उसमें हमने फंक्शन का नाम क्या दिया था, नोट पैड में भी आप प्रोग्राम ओपन कर सकते हो, फाइल ओपन, डेस्कटॉप पे जो प्रोग्राम है ऑल फाइल्स में मिलेगा आपको msg.js। ठीक है, फंक्शन का नाम दिया है ABC। तो ABC फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, कौन से फंक्शन को कॉल करना है, ABC। तो आपको यहाँ पे कोड चेंज करना पड़ेगा ABC। सेव दिस फाइल। तो ये प्रोग्राम जो है pqr.html से सेव करो। ठीक है, pqr.html डबल क्लिक करो तो देखो वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट हो रहा है HTML का प्रोग्राम। पहले पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और एक्शन बटन। तो एक्शन बटन की जब मैंने क्लिक किया तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, हेलो जावा टी पॉइंट यूजर्स। और ये कोड हमने कहाँ पे लिखा है, जावास्क्रिप्ट फाइल में msg.js में लिखा था। तो as and when you click on that button, JavaScript code get executed and according that alert box will display। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो आपको दो फाइल क्रिएट करना है, जावास्क्रिप्ट फाइल सेपरेटली एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और हमारा एचटीएमएल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आपको इस फाइल के साथ लिंक करना है, ठीक है। एनी डाउट स्टूडेंट्स इन दिस? एनी डाउट स्टूडेंट्स? यस और नो? नो सर। Then next is हाँ, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन राइट कमेंट इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। अभी सारे बेसिक कांसेप्ट जावास्क्रिप्ट के जो आपको डिस्कस करना है, वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऑपरेटर कौन कौन से यूज कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट, स्विच, लूप, फंक्शन, ये सारे हमको डिटेल में सीखना है। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिख के डायनामिक वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। So in last lecture you also learned how to write comments in JavaScript. So comment, there are two types of comments you can write: single line comment and multi line comment. Single line comment you can write by using double slash, and multi line comment you can write by using slash star. जैसे हम C language में लिखते हैं उसी तरह से, same concept. Next, okay, now we'll discuss about JavaScript variables. So while writing JavaScript program, you can also declare variables as you declare in C language. C language का program जब आप लिखते हो तो variable declare करते हो. Why to declare variable? Because once you declare a variable, certain type of values or information or data can be stored in the variables that can be later processed. ठीक है, अभी हम through HTML we cannot declare a variable, we cannot perform the operation on information, ठीक है। HTML से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। By using HTML only we can decide कि what should be the heading, what should be the color of the heading, where to display the heading, where to display the image, that's it. But suppose when user fill the examination form you can design by using HTML, but whatever the information entered through the form, like student name and marks, like this, such type of information you need to be stored in a variables, and for that you require scripting languages. So once you store that information in variable, later you can process that information again by using scripting language, not by using HTML. HTML में ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें से आप जावास्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट अभी कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है। और जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली अ नेम of storage location. There are two types of variables in JavaScript: local variable and global variable. सारे कंसेप्ट सी लैंग्वेज जैसे ही है, ठीक है। So there are two rules while declaring a JavaScript variable, also known as identifiers. First rule is name must start with letter, underscore or dollar, ठीक है। In JavaScript variable name must start with alphabets, either small a to small z or capital A to capital Z, or the variable name must start with underscore, or the variable name must start with dollar symbol, ठीक है। Name cannot start with digit, variable name cannot start with digit, ठीक है। Second rule क्या है, after first letter we can use digit 0 to 9, ठीक है। फर्स्ट लेटर के बाद आपको अगर डिजिट यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, लाइक जैसे कि sum 1 2 3, ठीक है। sum 1 2 3 is valid variable name because this name start with S. So digit, you can use digit in the variable name, but that digit must appear after the first character, after the first alphabet. JavaScript variables are case sensitive. For example, small x and capital X are different variables, ठीक है। JavaScript itself is a case sensitive language, ठीक है। So प्रॉपर केस में ही आपको प्रोग्राम लिखना है, जहां पर कैपिटल एक्सपेक्टेड है वहां पर कैपिटल टाइप करना है, जहां पर स्मॉल एक्सपेक्टेड है वहां पर स्मॉल ही टाइप करना है, ठीक है। केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट। स्मॉल x एंड कैपिटल X, these are two different variables, ठीक है। एज्यूम करो कि आपने वेरिएबल x डिक्लेयर किया है, लेकिन प्रिंट करते समय अगर उस वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करते समय आपने कैपिटल X यूज किया बाय मिस्टेक, तो एरर आ जाएगा आपके प्रोग्राम, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। So this is the way how you can declare JavaScript variables by using var keyword. Var x is equal to 10, semicolon, ठीक है। Make sure that each and every instruction must end with semicolon in JavaScript. So यहाँ पे चेंज क्या है कि जैसे आप C लैंग्वेज में डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो वेरिएबल के लिए, like int a, float b, such type of data types are not required while writing JavaScript variable. Simply आप var कीवर्ड का यूज करके var कीवर्ड वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू, so any type of value you can store in a variable,
जैसे सी लैंग्वेज में इंटीजर वेरिएबल में इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। ऐसा कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं है। अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल में आप इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, या तो फिर फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, या तो फिर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, so this is the way how you can declare variable in JavaScript. Var keyword as it is, then variable name, you can give any name to the variable. You must follow these rules while giving name to the variables. Equal to, you can store any value in that variable. Semicolon. So var x is equal to 10. Then second example, var underscore value is equal to SONOO. String store किया यहाँ पे। वेरिएबल का नाम क्या है? अंडरस्कोर वैल्यू, एंड yes, this is वेरिएबल नेम बिकॉज वेरिएबल नेम में स्टार्ट विद अंडरस्कोर। सो वेरिएबल का नाम क्या है? अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू, उसमें वैल्यू क्या स्टोर किया है? स्ट्रिंग स्टोर किया है। स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज इन डबल कोट्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स SONOO, all the set of characters will be stored in this variable. Some incorrect examples of declaring variables are given here. var123 is equal to 30. This is very invalid because variable name cannot start with digit. Digit start हो रहा है, that's why it's wrong. Var star AA is equal to 320. Again, this is wrong because variable name could not start with symbol. ठीक है, और पॉइंटर का कंसेप्ट है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, पॉइंटर्स। ठीक है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है जावास्क्रिप्ट, एंड दिस वेरिएबल नेम इज इनवैलिड क्योंकि वेरिएबल नेम स्टार्ट विद सिंबल। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल ओनली, दैट्स व्हाई दिस रॉन्ग। सो यहाँ पे एक सैंपल कोड दिया है। ठीक है, var x is equal to 10, var y is equal to 20, var z is equal to x plus y. So document.write, जैसे printf function है, that printf function in C language used to display some sort of message on the screen as output. उसी तरह वेब पेज के ऊपर अगर आपको कुछ डिस्प्ले करना है, you can use the function document.write. Document.write. Then in bracket you can either pass the string or you can pass the variable. The value of the variable will then be displayed on the web page. For example, देखो नोटपैड में एज्यूम करना कि आपने एक प्रोग्राम टाइप किया है, वेब पेज है, तो वेब पेज पे देखो 30 डिस्प्ले हो रहा है। 30 कैसे? ड्यू टू दिस स्टेटमेंट document.write। ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखा है? बॉडी सेक्शन, बॉडी स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। सो जावास्क्रिप्ट का कोड में क्या लिखा है? एज सून एज व्हेन दिस HTML प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूट, बॉडी सेक्शन में जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। हाँ, HTML का प्रोग्राम अगर लिखना है आपको, HTML का कोड, तो आप स्क्रिप्ट टैग के बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मुझे 30 डिस्प्ले करने के बाद हेडिंग डिस्प्ले करना है, सो आई कैन कंटिन्यू द स्क्रिप्ट H1 result of addition slash H1। ठीक है, तो अगर मैंने प्रोग्राम रन किया तो देखो पहले 30 ये जो आउटपुट आ रहा है ड्यू टू दिस जावास्क्रिप्ट कोड, और उसके बाद रिजल्ट ऑफ एडिशन ये HTML का होगा। सो HTML का कोड मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने लिखा तो एरर आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज आई कैन नॉट राइट द HTML कोड इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये एरर है। ठीक है, रन किया तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखो ये तो हमारा वेब पेज है, तो वेब पेज पे कोई डिस्प्ले हो रहा है क्या? नहीं, मींस सम सॉर्ट ऑफ एरर इज देयर इन योर HTML program. No problem, you can write Java HTML code in JavaScript, but there are some rules you must follow while writing those HTML code in JavaScript. ठीक है, directly HTML tag you cannot write in this script, और JavaScript का कोई भी कोड डायरेक्टली आप स्क्रिप्ट टैग के बाहर नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा var a is equal to 10, इसको कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि ये मैसेज डिस्प्ले होगा डायरेक्ट वेब पेज पे, var a is equal to 10। ठीक है, 30 जो आउटपुट आ रहा है जावास्क्रिप्ट का आउटपुट है, और var a is equal to 10 ड्यू टू दिस। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट का कोड आप बाहर नहीं लिख सकते। जावास्क्रिप्ट का कोड आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना है। ठीक है, सो देखो अभी वेब पेज के ऊपर 30 कैसे डिस्प्ले हो रहा है। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम HTML। सो HTML हेड सेक्शन को स्किप किया है, बॉडी टैग, बॉडी टैग में यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेडेड है यहाँ पर। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है? तो जब वेब पेज एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, तो जावास्क्रिप्ट का कोड भी रन होता है। सो फर्स्ट var ax is equal to 10, सो मेमोरी में कहीं तो भी 10 स्टोर होगा। var y is equal to 20, मेमोरी में 20 स्टोर होने वाला है।
then this instruction will calculate x plus y. That result will be assigned to z variable. ठीक है, एक नया वेरिएबल में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे z, और z वेरिएबल को क्या असाइन कर रहा हूँ, x plus y का एडिशन. सो x क्या है 10, y क्या है 20. सो 10 plus 20 30, 30 will be stored in z. सो अभी मुझे 30 वैल्यू स्टोर डिस्प्ले करना है, z का वैल्यू जो भी है 30 मुझे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है. तो कैसे कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखना है वो मैसेज, z भी वैल्यू डिस्प्ले करना है z का. तो मैंने सिर्फ z लिखा हुआ पर, अगर आप स्ट्रिंग भी डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब जो भी आप डबल कोट पे टाइप करोगे ऐसे भी डिस्प्ले होगा. ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मींस ये प्रिंटफ जैसे फंक्शन है. डॉक्यूमेंट डॉट राइट मींस का सी लैंग्वेज का जो प्रिंटफ है वो फंक्शन उसी की तरह वर्क करता है. ठीक है, और डबल कोट में आप जो भी मैसेज लिखोगे वो डिस्प्ले होगा मैसेज. ठीक है, लेकिन मुझे क्या कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करना है क्या, नहीं, मुझे z वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना है. अगर मैंने डबल कोट में z लिखा तो z डिस्प्ले होगा, स्ट्रिंग z डिस्प्ले होगा. ठीक है, मुझे z का वैल्यू डिस्प्ले करना है, दैट्स व्हाई ओनली वेरिएबल नेम आई एम स्पेसिफाई, सो इट विल डिस्प्ले द 30. सो दिस इज द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, डायनामिकली जनरेट हो रहा है कि वेब पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले करना है. तो क्या मैंने प्रोग्राम में लिख के रखा है 30? नहीं, फिक्स इंफॉर्मेशन है, कुछ भी चेंज हो सकता है यहाँ पे. अगर मैंने वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दिया 50 प्लस 20 70 डिस्प्ले होगा. This page we can call it as a dynamic web page. Now this web page is a dynamic web page because the content is not fixed. Content whatever appear on the web page that may be vary, depends on the code. कि आपने कोड क्या लिखा है, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद डिसाइड हो रहा है कि क्या डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर. डायनामिक वेब पेज. ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे डिस्प्ले करना है एडिशन इज इक्वल टू, ऐसे भी नहीं कर सकता, प्लस है. सो हियर प्लस इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन. पहले एडिशन इज इक्वल टू डिस्प्ले होगा मैसेज, उसको कॉन्कैट हो जाएगा z का वैल्यू. सो एडिशन इज इक्वल टू 30 और 70 जो भी है वो डिस्प्ले होगा. एडिशन इज इक्वल टू 70, एडिशन इक्वल टू मैसेज डिस्प्ले हुआ पहले, और इस स्ट्रिंग को मुझे क्या कनेक्ट करना है, z का वैल्यू कनेक्ट करना है. तो कनेक्ट करने के लिए प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड, इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, कनेक्शन ऑपरेटर. इस स्ट्रिंग को मुझे z का वैल्यू कनेक्ट करना है. सो एडिशन इज इक्वल टू प्लस z. सिंपली z नहीं लिख सकते, तो फिर कॉमन ही दे सकते हैं आप, जैसे आप सी लैंग्वेज में करते हो तो एरर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अभी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो ऐसे भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. एडिशन इज इक्वल टू z, ये एरर तो नहीं दे रहा है. ठीक है, बट दिस इज द सिंटैक्स व्हिच आर सजेस्टेड बाय जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अगर प्लस z के बाद भी मुझे दूसरा स्ट्रिंग कनेक्ट करना है, 70 के बाद मुझे और कनेक्ट करना है दूसरा, तो मैं प्लस करके उसको और स्ट्रिंग कनेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, तो एडिशन इज इक्वल टू उसको कनेक्ट किया 70, उसको अगेन कनेक्ट किया, तो ये प्लस निकाल दिया तो एरर आ जाएगा. ठीक, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए. तो z के बाद आपको क्या कनेक्ट करना है, प्लस दिस वैल्यू. ठीक है, एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस, yes or no? If you have any doubt you can ask. प्रोग्राम को कैसे एक्जीक्यूट करना है, अभी तो रेडीमेड प्रोग्राम में आपको डायरेक्टली ऑनलाइन दिखा रहा हूँ. अगर मैन्युअली आपको टाइप करना है तो नोटपैड में प्रोग्राम को टाइप करना है, सेव करना है प्रोग्राम डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन, और प्रोग्राम जब अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो आपके वेब पेज के ऊपर एडिशन का मैसेज दिखेगा. ठीक है, सो दिस प्रोग्राम तो इलस्ट्रेट की हाउ यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है, then next continue our discussion. Now there are two types of variables, local variable and global variable. Okay, so what is local variable? Variable which are declared inside a particular block are called as local variable. Those variable can be used only within that block. The variable could not be used outside that block. Such a variable are called as local variable. For example, अगर जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में मैंने अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखे, any number of functions I can write in a JavaScript program. So I assume that ABC is one of the user defined function in JavaScript program. And if I declare a variable in that function, then this variable I can call it as a local variable. This variable X could be used within that function only. This variable cannot be used outside this function. Function के body के अंदर ही use कर सकते. Local variable. Where global variable means what?
इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल आउटसाइड ऑल फंक्शंस, फंक्शन के बाहर अगर आपने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, वो वेरिएबल होगा ग्लोबल वेरिएबल। स्क्रिप्ट टैग में हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, सो स्क्रिप्ट टैग में एनी नंबर ऑफ फंक्शंस यू कैन राइट। तो जैसे कि देखो ए नाम का फंक्शन है, बी नाम का फंक्शन है, दो फंक्शन है सपोज जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में, तो दोनों फंक्शन के बाहर अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल को हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल where data is equal to 200. So this variable, global variable, you can use inside a function as well as this variable you can use in b function. a function के अंदर आप डेटा वेरिएबल का यूज करके देखो, जैसे कि मैं a function में डिस्प्ले कर रहा हूँ डेटा, डेटा का वैल्यू मींस 200 डिस्प्ले होगा यहाँ, ठीक है, 200 टू टाइम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, ए फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद बी फंक्शन कॉल किया, तो ए फंक्शन को जब कॉल किया है तो ए फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सो दिस इज द ए फंक्शन, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली तो आप बाद में इस प्रोग्राम में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम, इतना जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो कि बॉडी सेक्शन में लिखा है, ठीक है। सो एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है where data is equal to 200, वेरिएबल का नाम क्या है डेटा, उसका वैल्यू कितना है 200, और उसी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में दो फंक्शन लिखे, फंक्शन ए, दिस इज फंक्शन बी, फंक्शन ए, दिस इज फंक्शन बी। फंक्शन ए में क्या कोड लिखा है, so as and when I call this a function, this task will get performed, document.write ln data, write ln क्या करेगा, न्यू लाइन पे एक्चुअली डिस्प्ले होना चाहिए, तो एक लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है, ln इज जस्ट लाइक, और ठीक है राइट भी कर देते हैं document.write, एक्चुअली न्यू लाइन पे डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, यहाँ पे वो प्रॉपर्ली रन नहीं हो रहा है, ठीक है। राइट ln से न्यू लाइन पे डिस्प्ले होना चाहिए, राइट फंक्शन, राइट ln फंक्शन से नहीं हो रहा है यहाँ पर। So when I call a function will display the value of data variable on the web page. When I call the b function, again the value of data will be displayed on the web page. So this program illustrates that the global variable you can use in any function, and the variable which are declared outside all the function of JavaScript, that variable is called as global variable. Okay. So these are the function. Function does not get executed until and unless you call the function. तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट शुड बी देयर, सो देखो यहाँ पे लिखा है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, ए फंक्शन को कॉल किया है बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन ए सेमीकोलन, ठीक है। सो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, नो टास्क विल बी परफॉर्म टू दिस, प्रोग्राम तो कोड तो लिखा है लेकिन फंक्शन तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन गेट एग्जीक्यूट, ए फंक्शन इज कॉल्ड हियर, सो फंक्शन गेट एग्जीक्यूट एंड दैट फंक्शन विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डेटा व्हिच इज 200 ऑन द वेब पेज, देन कंट्रोल कम बैक, उसके बाद बी फंक्शन कॉल किया तो बी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगेन द वैल्यू ऑफ डेटा विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब, control come back to b function but end of the script, end of the body, end of the string, and according to the output is displayed 200, ठीक है। सो ग्लोबल वेरिएबल समझ में आया। ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होता है, ऐसा वेरिएबल जो आपने सारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है उसको बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल यू कैन यूज इन एनी फंक्शन ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ऑन द अदर हैंड लोकल वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल दैट वी डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, say where p is equal to 10, p वेरिएबल डिक्लेयर किया तो p का वैल्यू मैं सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने बाय मिस्टेक अगर यहाँ पे लिख दिया, अगर मुझे p वेरिएबल का वैल्यू 10 डिस्प्ले करना है, you think you'll write this, you can write document dot write p, तो एरर आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि p वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, यू कैन नॉट यूज दैट वेरिएबल आउटसाइड दैट फंक्शन। रन किया तो वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रहा है, p का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन वही स्टेटमेंट अगर आपने यहाँ से निकाला और यहाँ पे लिखा तो p का वैल्यू भी डिस्प्ले हो, 200 डिस्प्ले किया, उसके बाद 10 और उसके बाद 200, ये p फंक्शन कॉल किया तब का, ठीक है। पहले ये फंक्शन कॉल किया तो ये फंक्शन क्या करेगा, डेटा का वैल्यू और p का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, so डेटा का वैल्यू 200, p का वैल्यू 10, ठीक है। ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद b फंक्शन को कॉल किया तो b फंक्शन से डेटा का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, so 200। Any doubt? Yes or no? Any doubts in global and local variables?
माइट बी नो क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना. एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Then we'll continue our discussion with the next topic. ग्लोबल वेरिएबल हो गया यहाँ पर. लोकल वेरिएबल नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्लोबल वेरिएबल. यस, वो भी हो गया अभी. If you want to declare global variable inside a function, you can also declare global variable inside a function. ऐसा नहीं है कि आप फंक्शन के अंदर सिर्फ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. फंक्शन के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो बाय यूजिंग विंडो ऑब्जेक्ट. विंडो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 90. ठीक है, तो वैल्यू नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसका वैल्यू रहेगा 100 एंड दिस वेरिएबल बिकम अ ग्लोबल वेरिएबल. विंडो डॉट वैल्यू. सो आप कौन से भी फंक्शन में यूज कर सकते हो. एनी फंक्शन यू कैन यूज दैट वेरिएबल. ठीक है, तो देखो उसका वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है. यहाँ पे दो फंक्शन यूज किया है, फंक्शन m एंड फंक्शन n. लेकिन वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर किया है? फंक्शन m के अंदर. कैसे डिक्लेयर किया है? विंडो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 100. सो दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल नाउ. ठीक है, फंक्शन n के अंदर अगर मैंने फंक्शन कॉल किया n तो अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा. और अलर्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले होने वाला है? अलर्ट बॉक्स के ऊपर विंडो डॉट वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले होगा जो कि 100. ठीक है, सो पहले फंक्शन n को कॉल किया, उसके बाद n को कॉल किया. सो फंक्शन n को जब कॉल किया है तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है ग्लोबल वेरिएबल, उसका वैल्यू है 100. वेरिएबल इज विंडो डॉट वैल्यू. ठीक है, n फंक्शन को जब कॉल किया है तो मैंने विंडो डॉट वैल्यू, उस वेरिएबल का वैल्यू अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया. रन किया तो देखो 100 वैल्यू आ रहा है. तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अनदर फंक्शन. नॉट सो इंपॉर्टेंट. Then next we discuss about JavaScript data types. जैसे इस लैंग्वेज में डेटा टाइप्स है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट. वैसे कौन कौन से टाइप्स, डेटा टाइप्स के वैल्यू हम प्रोसेस कर सकते हैं. हालांकि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वो डेटा टाइप यूज नहीं करना है, लेकिन देयर मस्ट बी अ मींस यू मस्ट आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन JavaScript. डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू आइडेंटिफाई होने चाहिए. दैट्स व्हाई द डेटा टाइप्स used in the JavaScript. So JavaScript provides different data types to hold different types of values. These are two types of data types in JavaScript: primitive data types and non-primitive data types. दो टाइप के डेटा टाइप्स है, primitive and non-primitive. So primitive data type कौन से? JavaScript is a dynamic type language. Means you don't need to specify the type of the variable because it is dynamically used by the JavaScript engine. So JavaScript क्या है? Dynamic type language. Means while declaring the variable, no need to declare the data type of the variable. No, data type is declared at the runtime dynamically. जो value आप declare store करोगे variable पे, that becomes the data type of the variable. Like suppose if I store 40 in a variable, a become say integer. We can say it's an integer. When I store a is equal to string में अगर store किया राहुल तो a becomes string variable. हालांकि आपको specify नहीं करना है string integer float में. Dynamically चेक होगा कि ए कौन से टाइप का वेरिएबल, इंटीजर है, फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है. यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल. अगर मैंने ए वेरिएबल में इंटीजर 40 स्टोर किया, बाद में उसी ए वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ. बाद में मैं उसी वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, है ना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा अगर प्रोग्राम दिया है तो हम इसमें चेंज करेंगे. ठीक है, हम प्रीवियस वाला प्रोग्राम ठीक है, यहाँ से भी कोड हटा देता हूँ यहाँ से. ठीक है, तो a इज इक्वल टू सपोज वेरिएबल var. जावास्क्रिप्ट का कोड में लिख रहा हूँ यहाँ पे बॉडी सेक्शन में स्टेप टैग के अंदर var a इज इक्वल टू 4 सेमीकोलन. अभी मुझे डिस्प्ले करना है a का वैल्यू. सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट a. तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? a का वैल्यू 40 डिस्प्ले करेगा. उसी के बाद मैं क्या कर रहा हूँ?
ए को मैं क्या सेंड कर रहा हूँ 14 निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट का नाम छोड़ रहा हूँ नीलेश। वापस मुझे उसका वैल्यू डिस्प्ले करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है 40 नीलेश। दो टाइम दो आउटपुट में डिस्प्ले किया, पहले ए का वैल्यू बाद में भी ए का वैल्यू, लेकिन पहले ए में क्या स्टोर था, नंबर स्टोर था, वैल्यू स्टोर था, तो डॉक्यूमेंट डॉट ए राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डिस्प्ले 40। उसके बाद मैंने क्या किया 40 को हटा दिया, वो वैल्यू को रिमूव किया ए वेरिएबल से, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दिया बाद में मिले, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए विल डिस्प्ले नीलेश। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइप के वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ वैल्यू एट एनी टाइम यू कैन स्टोर इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। Okay, JavaScript primitive data types. So there are 5 types of primitive data types in JavaScript. They are as follows: string, number, boolean, undefined, and null. Okay, string क्या है? Represented sequence of characters. Set of characters enclosed in double quote is called as string. Number, so any number like 1, 2, 3. Number data type. Boolean means true or false. Represent Boolean value, either false or true. Okay, Boolean data type. Represent one of two values, either true or false. Make sure that this true and false value are case sensitive. TRUE in small, FALSE in small case. These values we can call it as a Boolean values. So in Boolean value, in Boolean variable only you can store either true or false. So non-primitive data type कौन से? So object, arrays, regular expression, all these are the non-primitive data type. उसमें से हमको सिर्फ array पढ़ना है आपके सिलेबस में, और ऑब्जेक्ट भी है लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ विल डिस्कस अबाउट जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। व्हाइल राइटिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यू कैन यूज ऑपरेटर्स आल्सो। हाँ, जैसे आपने सी लैंग्वेज में अलग अलग ऑपरेटर्स सीखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, सेम कंसेप्ट, सेम ऑपरेटर, सेम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। लेट्स गो थ्रू कि कौन कौन से ऑपरेटर आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखते समय यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, so JavaScript operators are symbols that are used to perform operation on operands. For example, var sum is equal to 10 plus 20. So here plus is the operator, arithmetic operator, and these are the two operands. Now addition क्या है? Binary operator है, so it requires two operands. So 10 and 20 are the two operands. Okay. Addition operator will calculate the addition of these two operands, and accordingly result will be stored in some variable. So equal to operator is assigned an operator that assigns the right hand side expression, the value of right hand side expression to left hand side variable. So 10 plus 20 का result is 30, that will be assigned to some variable by in this assignment operator. So first we'll discuss what different categories of operators are supported by the JavaScript operators. JavaScript. So there are 6 type of operators that JavaScript supports. कौन से? Arithmetic operators, comparison operators are also called as relational operators, then bitwise operators, logical operators, assembling operators, and spatial operators. JavaScript supports these 6 different categories of operators. Let's discuss each and every category of operator in detail. So पहला category arithmetic operators. So JavaScript supports 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arithmetic operators. So these are the 7 arithmetic operators supported by JavaScript. ठीक है। सी लैंग्वेज में 5 ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। सी लैंग्वेज में 5 ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जावास्क्रिप्ट में कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर है? 7. सो सी लैंग्वेज में जो सेपरेट कैटेगरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर नथिंग बट द अरिथमेटिक ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। दैट्स व्हाई 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर। ठीक है, कौन-कौन से 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है? फर्स्ट ऑपरेटर इज प्लस, रिप्रेजेंट एडिशन ऑपरेशन, लाइक 10 plus 20 is 30. तो 30 कैसे आया? ड्यू टू दिस प्लस ऑपरेटर। Then second operator is minus, subtraction operator है, so 20 minus 10 equal to 10. So 10 कैसा है result? Due to this minus operator. ठीक है, where 20 and 10 are the operands. Then third operator is star, multiplication operator. So 10 into 20 is 200. So multiply किया दोनों ऑपरेंड का. Then division. ठीक है, 20 divided by 10 is 2.
20 divided by 10. So division operator gives the question part of the division. When 20 is divided by 10, question part will be 2. The next operator is modulus or remainder. It gives the remainder of the division. So 20 divided by 10 is 0. When 20 is divided by 10, remainder will be 0. The next operator is plus plus, stands for increment. So assume that in JavaScript variable, if you declare like this, where a is equal to 10, if you write a plus plus, a become 11. Decrement, if you write a minus minus, the value of a is decremented by 1. Assume करो कि a का value 10 है. I can write instruction in my JavaScript program a minus minus semicolon. a minus minus से क्या हो जाएगा? a का value 1 से डिक्रीज हो जाएगा. 10 become 9. ठीक है? Any doubt in arithmetic operators, students? No. The next category of operator is comparison operators. So C language, JavaScript supports 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 types, 8 different comparison operators. जो कि C language में सिर्फ 6 ही operators. C language में 6 relational operators है, comparison operators. JavaScript में कितने? 8 है, 2 एक्स्ट्रा है. तो एक्स्ट्रा कौन कौन से? ट्रिपल इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल. ये 2 एक्स्ट्रा है, बाकी के तो सारे C language में as it is available. You place same. Okay, the concept is same as it is compared to C language. ठीक है. सो कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर है? पहला इक्वल टू इक्वल. ठीक है. तो ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स रिजल्ट इनटू आइदर ट्रू और फॉल्स. रिलेशनल ऑपरेटर अगर आपने यूज किया है जावास्क्रिप्ट में तो उसका रिजल्ट ट्रू रहेगा या तो फिर फॉल्स रहेगा. ठीक है. सो इक्वल टू के लिए जब कब ट्रू रहेगा? अगर दोनों ऑपरेंड अगर सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. ठीक है. दोनों ऑपरेंड इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? दोनों ऑपरेंड को चेक करता है सेम है या नहीं. सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स. फॉर एग्जांपल इक्वल टू सो 10 इक्वल टू 20. सो इक्वल टू ऑपरेटर. these are the two operands. 10 and 20 are the operands. तो दोनों भी ऑपरेंड डिफरेंट है. that's why the result is false. अगर यहाँ पे 10 होता 10 इक्वल टू 10 तो रिजल्ट ट्रू हो जाता. ठीक है. सी लैंग्वेज के ही कंसेप्ट है. नेक्स्ट ऑपरेटर है ट्रिपल इक्वल टू, आइडेंटिकल, इक्वल एंड ऑफ सेम टाइप. अगर दोनों ऑपरेंड इक्वल है और सेम डेटा टाइप के हैं तो ही रिजल्ट ट्रू रहेगा, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फॉल्स. ठीक है. Any doubt between equal to and triple equal to? Sir, triple equal to. Okay. So let me give an example. ठीक है. assume करो मैंने जावास्क्रिप्ट में ऐसे वेरिएबल सेट किया है var a is equal to 20 var b is equal to 20. ठीक है. पहला वेरिएबल कौन सा है? a वेरिएबल. उसमें क्या स्टोर किया है? नंबर 20 स्टोर किया. दूसरा वेरिएबल कौन सा है? b. उसमें क्या स्टोर किया है? स्ट्रिंग 20 स्टोर किया. अगर मैंने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया वेदर a इक्वल टू b तो इसका रिजल्ट ट्रू है. दोनों सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग अलग है. इसका नंबर है, इसका स्ट्रिंग है. लेकिन अगर दोनों वैल्यू अगर आपने पास किया जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को, ठीक है, तो डेटा टाइप चेक नहीं होता है. इक्वल टू ऑपरेटर डज नॉट चेक द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, checks for the values of set of characters. पर दोनों देखो इसमें भी 2 कैरेक्टर्स है 2 0, इसमें भी 2 कैरेक्टर्स है 2 0. तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर देगा? रिजल्ट्स को ट्रू कर देगा, फॉल्स नहीं. ठीक है. लेकिन अगर मैंने a ट्रिपल इक्वल टू b लिखा तो ये रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स. ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू भी चेक करता है और डेटा टाइप भी चेक करता है सेम है. तो आपको दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है. वैल्यू दो सेम कैरेक्टर सेम वैल्यूज आर देयर असाइन टू बोथ द वेरिएबल, लेकिन डेटा टाइप अलग अलग. ए का डेटा टाइप यहाँ पे नंबर है, बी का डेटा टाइप स्ट्रिंग है. दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज फॉल्स.
triple equal to operator also check the data type on the variable along with the values. ठीक है, सर फिर ट्रू कैसे होगा वो? तो दोनों भी सेम डेटा टाइप क्यों नहीं चाहिए, या तो दोनों भी स्ट्रिंग चाहिए या तो फिर दोनों भी नंबर चाहिए, तब ट्रू हो जाएगा ट्रिपल इक्वल। ठीक है, एज्यूम करो कि अभी a is string 20, b is string 20, now a triple equal to b is true। ठीक है, along with the values data type should be same। ठीक है, that is given identical, equal and of same type। ठीक है, यस सर। then third operator is not equal, दूसरी लैंग्वेज में as it is not equal to, तो दोनों वैल्यू अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट ट्रू, सेम है तो फॉल्स। ठीक है, लाइक हॅलो सर। हां सर आज सर इंटरने एक्झाम स्टार्ट झालेत ना, तर सो मॅमने लिंक सेंड केले ग्रुप वरती। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है, no problem. So today we stop here. In next lecture we'll continue our discussion on operators। ठीक है, ऑपरेटर्स के बाद में आपको क्या सीखना है, ऑपरेटर्स के बाद इफ स्टेटमेंट, if else, then switch, then loop, इसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप सारे सीखने के बाद आपको प्रोग्राम लिखना है हमारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के प्रोग्राम। ठीक है, देन विल कंप्लीट विद द जावास्क्रिप्ट चैप्टर। ठीक है, so today we'll stop here। So attend today's internal examination, best of luck students। ठीक है, थँक्यू सर। थँक्यू सर। leave the meeting and attend your internal exam। 5 मिनिटासाठी काय काय पण नाही का रे